जी folks, thank you very much for joining me once again. बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. आज मेरे एक special guest है, an old and very dear friend of mine, somebody who I've spent a lot of time with in press boxes over the years and talked to and spoken with about Pakistan cricket. Senior Pakistani journalist, he's covered Pakistan cricket and many other sports for a very, very long time. We see him on our television screens regularly. He's been through the highs and lows of Pakistan cricket over the years as well. Very, very warm welcome to Mirza Iqbal Beg. Iqbal Sahab, Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. Thank you so much for your introduction, Sajid Saab. Iqbal Sahab, a very sad time for Pakistan cricket. Aapne to dekho, as I said in the introduction, you've seen many highs and lows of Pakistan cricket. लेकिन ये जो low है, देखो Ireland, USA और Canada के group में unable to qualify. This has to be one of the lowest points of Pakistan cricket. You are absolutely right, Sajid Saab. I covered 2003 Cricket World Cup, which was played in South Africa. And in that World Cup, Pakistan didn't qualify for Super Sixes. और जो performance रही थी टीम की बड़ी pathetic performance रही थी, because before leaving for South Africa, there was an issue, captaincy issue. The chairman cricket board, Tawqir Zia, at that time wanted to make Wasim Akram as the captain of Pakistan cricket team, but some people advised him that it won't be better because his name is there in Justice Malik Qayyum's report that he shouldn't be given any sort of great responsibility. So Waqar Yunus was made the captain, and same thing happened, which happened. But now, this time, it's the low of Pakistan cricket, lowest step ever. I have covered cricket for the last 32 years. I have never seen such a pathetic performance from a Pakistani cricket team. इकबाल साहब, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि कैप्टनसी का. जब पाकिस्तान क्रिकेट के प्रॉब्लम्स इश्यूज होते हैं, इट यूजुअली रिवॉल्व्स अराउंड कैप्टनसी. इस दफा भी देखो, they made Shaheen the captain, they replaced Babar, and then at the last minute they brought Babar in as captain. Do you think this is the main issue behind the problems? Yeah, this you can say that this is also an issue behind the problem. उसकी वजह ये है कि इन्होंने बाबर आजम 2019 से पाकिस्तान क्रिकेट का कप्तान बना सरफराज के बाद, लेकिन he couldn't improve himself or he couldn't win major titles for Pakistan. Although Pakistan qualified for the final of Asia Cup and for the final of T20 World Cup, but he couldn't win a tournament for Pakistan. Pakistan hasn't won a tournament. You know better than me since 18 June 2017 when Pakistan won the Champions Trophy in at Oval London. तो मसला ये है कप्तानी का. एक टीम में साजिद साहब 11 रुकनी टीम में 5 कप्तान खेल रहे थे. आप देखें कि बाबर आजम, रिजवान हैज आल्सो लेड पाकिस्तान इन वाइट बॉल क्रिकेट, शादाब खान, इमाद वसीम एंड शाहीन आफरीदी. तो 5 कप्तान अगर एक टीम में खेल रहे हैं, आप उसको कैसे, हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग. और फिर बाबर का एटीट्यूड थोड़ा रिजिड एटीट्यूड था कि वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे ज्यादा बिलीव करता था. आप देखें शादाब खान, लोग कहते हैं दोस्ती यारी निभा रहे, और लोगों की बातें भी दुरुस्त है कि शादाब खान ही एंटर्ड इनटू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, और उसकी मेन प्रायोरिटी जो थी वो लेग स्पिन बॉलिंग थी. लेकिन लास्ट 2 मैचेस में अगेंस्ट इंडिया एंड अगेंस्ट कनाडा ही इवन डिडंट बॉल अ सिंगल ओवर. तो और उसको एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं. एक तो उन्होंने कॉम्बिनेशन सही नहीं सेलेक्ट किया था, जो 15 मेंबर स्क्वाड था. आप देखें वो उसका बैलेंस नहीं था साजिद साहब, जिसमें 5 ओपनर्स आपने रख लिए, आपने 5 फास्ट बॉलर्स रखे, 3 स्पिनर्स रखे, मिडिल ऑर्डर में आपने सिर्फ 2 बैट्समैन रखे, आजम खान और इफ्तिखार अहमद. तो इट मींस कि आपका बैलेंस ही सही नहीं था. आपने सलमान अली आगा को लेकर गए आप आयरलैंड, इंग्लैंड, और उसको खिलाए बगैर वापस भेज दिया. हालांकि ही कुड हैव बीन अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, लेकिन नहीं खिलाया. तो ये अपनी मनमानी है ना बाबर की. बाबर तो ही वांटेड टू इंडक्ट हसन अली आल्सो इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम. वो तो हसन अली की पिटाई हो गई वहां पर जो मैच था एक आयरलैंड का, जिसमें उसने 40 ऑड रन दिए, जिसकी वजह से उसको भेज दिया गया. तो पसंद नापसंद, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म की बेसिस पर अगर आप पाकिस्तान के 11 मेंबर स्क्वाड को सिलेक्ट करेंगे तो फिर यही होगा जो अभी हुआ है इनके साथ. साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी एक long standing problem in Pakistan cricket. Board blames the coaches, coaches blame the players, players blame the coaches. This time, after the debacle and disaster, responsibility कौन लेगा? I think the whole responsibility lies with the chairman of Pakistan Cricket Board, because he is the man who took all the decisions.
He is the man who brought Babar Azam back as Pakistan cricket captain. He talked with him, he negotiated with him. Babar wanted power in his hands, and that's why he was made captain of Pakistan cricket team. और फिर उसके अलावा the 7-member selection committee. साजिद साहब, आप भी क्रिकेट इतने अरसे से कवर कर रहे हैं. Have you ever seen 7-member selection committee in any cricketing nation? आप 7 members selection committee बनाते हैं आप, and there is no chairman of that selection committee. क्यों? कि वहाब रियाज इज वेरी क्लोज टू चेयरमैन पीसीबी, और वहाब रियाज को अगर वो बना देते, उन्होंने 27 टेस्ट मैचेस खेले. यूसुफ उस सिलेक्शन कमेटी में, ही हैज बीन द फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन एंड ही हैज आल्सो प्लेड 90 टेस्ट मैचेस. तो अगर यूसुफ के होते हुए वहाब रियाज बन जाते चीफ सेलेक्टर, तो शोर मचता. तो उन्होंने कहा जी हम कोई चीफ सेलेक्टर ही नहीं है. अब आप मुझे बताएं, डेटा एनालिस्ट ये बिलाल अफजल साहब को लेकर आए, जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है. बिलाल अफजल साहब जो जब इंटरम गवर्नमेंट थी, जहां मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस इंटरम गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर थे. वहाब रियाज उनके एडवाइजर थे स्पोर्ट्स के. अब आप अपने ट्रस्टेड लोगों को लाएंगे, और बिलाल अफजल साहब को लाएं, डाटा एनालिस्ट, वो फाइनेंस के आदमी है. तो आप इस तरह के डिसीजन लेंगे तो फिर इससे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा होगा? असद शफीक को आप 8-10 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, उसको आपने सेलेक्टर बना लिया, वो बिल्कुल खामोश है, उसका इनपुट कहाँ नजर आता है? अब्दुल रज्जाक को आप 8-10 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, वो अमेरिका में होता है, टेप बॉल क्रिकेट खेल रहा होता है. उसकी संजीदगी का अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वहां मुश्किल से 2-4 है, एक सेलेक्टर अमेरिका में वो टेप बॉल क्रिकेट खेल रहा है. तो ये सारी बहुत सारे, क्या क्या आपको बताऊं, बहुत सारी गलतियां हैं कि जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है. इकबाल साहब, आपने बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे में बताया और पीसीबी चेयरमैन्स मिस्टेक्स, सिलेक्शन कमिटी, लेकिन प्लेयर्स आल्सो हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी. इकबाल साहब, देखो इतने इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स विद इन द स्क्वाड हु हैव अंडरपरफॉर्म दिस टाइम. यू आर एब्सोल्युटली राइट साजिद साहब. एक्चुअली मामला यहाँ से शुरू हुआ जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई ब्रेसवेल की कप्तानी में. तो उस वक्त इन्होंने ओपनिंग पेयर चेंज किया. पहले तो उन्होंने वहां चेंज किया था हफीज ने, जिस पर रिजवान ने, आपको सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कमेंट दिए कि ही वांटेड टू प्ले एज एन ओपनर, लेकिन फिर उसको जो है वहां हटाया न्यूजीलैंड के टूर पे जब शाहीन कप्तान था. फिर जब यहाँ आए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में साइम अयूब और बाबर आजम ने इनिंग्स ओपन की पाकिस्तान की, जिसका रिजवान को बड़ा एहसास हुआ. और आप देखें आखिरी 2 मैचेस में वो कहते हैं वो अनफिट हो गया, वो खेले ही नहीं 2 मैचेस. एक तो ओपनिंग स्लॉट का मसला, कि ओपनिंग स्लॉट के लिए जंग जारी है. बाबर आजम चाहता है मैं इनिंग्स ओपन करूं, रिजवान चाहता है मैं भी इनिंग्स ओपन करूं, क्योंकि इनका स्टाइल ऑफ प्ले ऐसा है कि ये लंबी लंबी हिटें नहीं मार सकते जिस तरह दुनिया के दीगर बैट्समैन जो है वो उसमें. बाबर आजम को उस पर बड़ा कॉन्फिडेंस था, साइम अयूब पे उसको लेकर आया, जल्मी में उसके साथ खेला, लेकिन रिजवान की नाराजगी भी मोल नहीं ली जा सकती थी. और आप एक खास पॉइंट नोट करें साजिद साहब, कि इस टीम का कोई वाइस कैप्टन ही नहीं था, जिससे आप अंदाजा लगाएं कि अगर वाइस कैप्टन नहीं है तो इट मींस समथिंग इज कुकिंग, कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से. तो बहुत सारे अवामिल थे, और ये प्लेयर्स को दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ्तिखार अहमद हैज बीन प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट सिंस 2015, और वो अपने 60-64 T20 में उसकी 4 50s है, उनमें से भी 3 50s ऐसी हैं जो पाकिस्तान हार गया. तो आखिर कब तक उसको आप कैरी करेंगे? आजम खान की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है, आप उससे कीपिंग करा रहे हैं, हैरत की बात है. और आजम खान जो है वो फ्लॉप हो गया. वो कहते हैं बड़ा जबरदस्त ये पिंच हिटर है, ये पावर हिटर है, और ये बड़ा मारता है, वो फेल हो गया इंटरनेशनल लेवल पर. फिर अब आप आज जो खबर आई है साजिद साहब, वो ये है कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर वो जो है रिटायर हो रहे हैं. पाकिस्तान का जो आखिरी मैच है आयरलैंड के खिलाफ, उसके बाद रिटायर हो रहे हैं, सो दैट दे कैन प्ले डिफरेंट लीग्स इन द वर्ल्ड. तो क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खिलवाड़ कर रहे हैं कि जब दिल चाहा रिटायरमेंट वापस ले ली, जब दिल चाहा रिटायर हो गए? क्या हमारे पास बैकअप टैलेंट नहीं है? क्या पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई और प्लेयर नहीं है? तो ये सब देखना पड़ेगा. मिसमैनेज्ड है पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त. और आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान क्रिकेट का सीनियर मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट कौन है? जुनेद जिया, जिसका खुद बॉलिंग एक्शन सस्पेक्ट रहा है, और वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहा है. तो ये सारे ऐसे मामला हैं कि आपको क्या बताएं, बहुत सारी गड़बड़े हैं. इकबाल साहब, फाइनल पॉइंट हो गया, वर्ल्ड कप नॉकआउट डिजास्टर. आगे क्या होगा? व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इकबाल साहब? मेरे ख्याल में अभी ये देखें, एक तो लोगों में बहुत गम और गुस्सा है, पीपल आर अनॉयड, और ये उनको ठंडा करने के लिए जो ऐलान किया है चेयरमैन साहब ने कि हम सर्जरी करेंगे, फिर कहा एक बड़ी सर्जरी करेंगे. क्या सर्जरी होगी? अब इनको चाहिए कि नई टीम तश्कील दें, क्योंकि अभी अब पाकिस्तान का कोई शॉर्टर वर्जन का असाइनमेंट नहीं है. अगस्त में बांग्लादेश की टीम आ रही टेस्ट खेलने के लिए. मेरी अपनी जाती राय में और भी कई टेस्ट क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं
कि इनको चाहिए व्हाइट बॉल क्रिकेट का भी कप्तान शान मसूद को बना दें। शान मसूद रेड बॉल क्रिकेट का कप्तान है। ही परफॉर्म प्रीटी वेल इन द फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप इन नवंबर 2022 अगेंस्ट इंग्लैंड, जो हाईएस्ट स्कोरर था। उसको भी इन्होंने रोलिंग स्टोन इसलिए बना दिया था कि ओपनर कौन आएगा, या फखर जमान को बेचारे को चौथे पे ले गए। सबके अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो मेरे ख्याल में एक तो कप्तान इनको चेंज करना चाहिए, दूसरे कुछ प्लेयर्स को रेस्ट कराना चाहिए कि थोड़ा रेस्ट कर लें और फिर उसके बाद इनको लेकर आए। और इनकी जो मोनोपोली है वो खत्म करनी चाहिए। अगर नहीं खत्म करेंगे, ऐसे ही ये जो समझ लीजिए ये कॉस्मेटिक्स मेजर्स होंगे जो हम करेंगे और इसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो एक कड़वा घूंट पीना है इनको, और कड़वा घूंट पीने के लिए बड़े स्टर्न सख्त किस्म के डिसीजन लेने, जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जा सकती है। वरना सेम यही हुआ था, मैंने आपको बताया ना कि 2003 के वर्ल्ड कप में हम सुपर 6 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके और उसके बाद कई प्लेयर्स रिटायर हुए। आपको याद होगा साजिद साहब, वकार यूनुस रिटायर हो गए, शोएब अख्तर रिटायर हो गए, एक नई टीम बना दी इन्होंने, आमिर सोहेल चीफ सेलेक्टर हो गए, राशिद लतीफ कप्तान बन गए। तो इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान क्रिकेट जो है ऐसी रुसवा होती रहेगी। इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। Always थैंक very यू, interesting, always a pleasure listening to your honest views, Iqbal साहब। थैंक यू, Thank you very much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन। साजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, pakpassion.net का भी और आपका भी बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. थैंक यू।